Good afternoon, people. Welcome back. Well, chapter 2 electrostatic potential and capacitance चल रहा है. Last time we did JEE NEET lecture number 1, in which we dealt with electrostatic potential energy, potential difference. Then we saw electrostatic potential due to an electric charge, dipole, shell. We did all that. आज आगे बढ़ते हैं. The first topic today is the relation between electric field and electric potential. ये आइडिया आपने देखा है बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में. You already know that electric field, we have derived it also, that change in potential or potential difference is minus E into the distance, which is delta x. So delta V was minus E delta x, or electric field is minus delta V by delta x. But this is not how we represent. In any ways, let me tell you what this portends. Two important things. Two tips. First, electric field is the change in potential upon the distance. So electric field is the negative of the change in potential to the distance. And secondly, जहां डेल्टा वी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है पोटेंशियल में, that will give us the direction of electric field. So the direction of electric field is that in which potential changes or decreases maximum. Alright, so these are the two ideas. And thirdly, third point भी था, बढ़िया interesting था third point, that as you go in the direction of electric field, potential goes on decreasing. So while going in the direction, जी बड़ा हो गया थोड़ा, in the direction of E bar, of electric field E bar, the potential goes on decreasing. Now you tell me, sir, बराबर देखा हमने, पर जेई नीट में इसका क्या काम है? Okay, भाई ध्यान से देख लेना. We write this E is minus delta V by delta x. We can also, textbook में हम लिखते थे E is minus delta V, this delta V used to write, by delta L. But now we can write in practice, ध्यान से, electric field, let me write it in red. Red is bad. No, it is not bad, it's lovely. E is minus dabba V by dabba L या dabba R. This is the expression. Now you will ask, sir, ये expression आपने ये change कैसे कर दिया? ये dabba क्या है? You can also call it del. You can call it dabba. This stands for del, or you can call it dabba. ये होता क्या है? This is the partial derivative. Sir, normal derivative सुना, partial derivative नहीं सुना. Let me be very candid. Partial derivative का idea normal derivative जैसा ही है. For example, you say d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Same idea है. Then why this dabba by dabba r? Okay, just go through this. This is a very important idea. I'll take it again. But ये dabba क्या है? Dabba is the partial differentiation. I'm sure you know electric field is a vector. So it has got three components, x, y and z. And as a result, we can write
the x component of electric field Ex is minus dabba V by dabba x. This is dabba by dabba x of V. That means partial derivative, that is partial differentiation of potential V with respect to x. जैसे हम d by dx करते थे वैसे डाबा by डाबा x करके बताऊंगा तब मजा आएगा. So Ex is minus dabba V by dabba x. Ey is minus dabba V by dabba y, and Ez is minus dabba V by dabba z. So the y component of electric field is minus dabba by dabba y of V. That is the partial differentiation of V with respect to y, and Ez is minus dabba V by dabba z. So your equation for electric field E bar, you know, E bar can be written as Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap. तो इसको किस तरह लिखा जाए? So electric field E bar, everybody knows, is Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap. तो Ex की जगह I'm going to write minus dabba V by dabba x. Ey की जगह I'm going to write minus dabba V by dabba y. And Ez की जगह I'm going to write minus dabba V by dabba z. So what does my equation for electric field become? Minus dabba V by dabba x I cap minus dabba V by dabba y j cap and minus dabba V by dabba z k cap. अब पब्लिक बोल रहे सर बहुत डाबा डाबा हो गया, कुछ वापर के दिखाओ, कुछ यूज करो तो मजा आए. एक सम लेता हूं जिससे डाबा का फंडा, दो सम लेता हूं, एक नहीं दो, एक से भले दो होते हैं तो दो सम लूंगा और इससे ये परमानेंट आइडिया क्लियर हो जाएगा कि डाबा बाय डाबा जेड होता क्या है. ओके, आप इसको देखो, मैं सम लिखता हूं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज V, इक्वेशन दिया हुआ है, V is 4x square, and find the electric field at point 102 meter. As simple as it looks. अब यहाँ पे you can see that potential is only in terms of x, but obviously there is no y, there is no z, so there will be no Ey, there will be no Ez. So as equation contains, as equation for V does not have y or z, so there are no Ey and Ez components. Okay, ठीक है, नहीं है तो क्या करना है? करना कुछ नहीं है. So Ex will be finally minus dabba V by dabba x. तो सॉल्व करना है, आओ सॉल्व करें बहुत ही बढ़िया तरीके से. So Ex thus, Ex is minus dabba V by dabba x. V की जगह पे क्या गया? 4x square. नॉर्मल डिफरेंशिएशन रूल्स अप्लाई. 4 को बाहर निकाला मैंने, and dabba by dabba x of x square. As I already said, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Same rules. Dabba by dabba x of x square will be 2x, and therefore your final equation Ex is minus 8x. तुमको पॉइंट भी दिया हुआ है, उसमें x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट है 0, z कोऑर्डिनेट है 2. सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन. हमारा इक्वेशन का नंबर क्या है? कोई नंबर ही नहीं, तो 1 लगा देते इन इक्वेशन 1. तो क्या मिला? Ex इज माइनस 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 1. यहां से उठाया मैंने, x की वैल्यू 1 है तो मैंने यहां लगा दिया. सो माइनस 8 is your idea. So final electric field thus
और हमारा बजाज इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये इधर लिखा हुआ है मस्त, तो इसी को यूज कर लेंगे और इसी की जगह ई वाई नहीं है, ई जेड नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ई एक्स ही है अकेला, तो ई एक्स की जगह -8, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज -8 आई कैप न्यूटन पर कूलम। और वैसे देखने जाओ तो यहीं से मिल जाता है, तुम न्यूटन पर मीटर की जगह वो न्यूटन पर कूलम की जगह यू कैन ऑल्सो राइट वोल्ट पर मीटर। सो और वोल्ट पर मीटर तुमको जो इच्छा हो। और अब पता चला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो सके। सो दिस इज द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Just have a look, and now I'm going to do a sum which is a terrific sum. उसमें तीनों है, we got dabba y by dabba v by dabba x, we got dabba v by dabba y, we got dabba v by dabba z, and looking at that we will move on. Just have a look and I'll be back with the sum. And I'm back, but sum नहीं लाया, sum आ रहा है आ रहा है। तो सम ये है, इसी की जैसा है, कोई खास फर्क नहीं है, बस इतना है कि उसमें y भी है z भी है। तो जब तीनों साथ साथ हो तो क्या होगा? सो सम आ रहा है, जरा ध्यान से। सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज v इज इक्वल टू, हम सम को देख के लिखेंगे, ये तो अक्सर गड़बड़ हो जाती है, 2x square y plus 3y cube z minus 4z raised to 4x. Find ex, ey and ez at point, कौन सा पॉइंट है भाई? 1 1 1। बड़ा ही जालिम डेटा और उतना ही जबरदस्त सॉल्विंग। आर यू देयर? आर यू लुकिंग? ओके, तो इफ यू सी इन दिस न्यूमेरिकल, v दिया हुआ है इन दिस फॉर्म, तो सॉल्विंग शुरू होगा। हमको पता है, हम दुनिया जानती है, वी नो ex is minus dabba v by dabba x। तो v की जगह ये पूरा लगाएंगे, और ध्यान से देखना, अगर सो रहे हो तो जाग जाना, और जाग रहे हो तो खड़े हो जाना, मतलब खड़े मत हो जाना, बट एकदम सावधान। और डेटा गलत कॉपी करने वाले को तो ऊपर ऑलिव ऑयल में फ्राई करने वाले हो। 2x square y plus 3y cube z minus 4z raised to 4x। बंटवारा होगा, तुमको माइनस बाहर रख के बात करनी है तो भी कर सकते हो, मैं पहले बंटवारा कर लूंगा। दिस इज बंटवारा, आई विल divide all the terms, and now look, you can see that this is dabba by dabba x of 2x square y. 2 is a constant, it will come out. When you are differentiating partially with respect to x, everything else will be taken constant. So let me write that as a note. ये आपके लिए खास, न्यूमेरिकल में नहीं आता। While differentiating partially, यार कहाँ चला गया, with respect to x, everything else is taken, everything else मतलब y, z, etc.
आर टेकन कांस्टेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पे। यू कैन सी दिस इज 2x² y, x है, 2 है और y है। इसमें क्या क्या कांस्टेंट होगा बताओ आप? 2 कांस्टेंट है एंड y भी कांस्टेंट है, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के अलावा बाकी दोनों चीजें 2 and y will be taken constant. So in this particular idea here, मैं यहां डंडी मार देता हूं, ये सम का हिस्सा नहीं है। e x माइनस बाहर आ गया, क्या आया? 2 भी आया, y भी आया, एंड अंदर क्या बचा? x square. So partial differentiation, when we do it with respect to x, inside the bracket differentiable is only x, everything else is taken constant. So 2 and y came outside, अंदर सिर्फ x square बचा, so dabba by dabba x of x square. Look at the second term, dabba by dabba x of 3 y cube z, 3 constant, y constant, z भी constant. So this is, ये तीनों आइटम constant है, x है ही नहीं. So dabba by dabba x of constant, what is d by dx of constant? 0. तो ये पूरे तीनों constant होने की वजह से 3 भी constant है, y भी constant है, z भी constant है. So dabba by dabba x of constant is 0. Can you see that? Because all three are constant, so dabba by dabba x of constant will be 0. Now, if you are looking closely, you can help me out here. Last term, dabba by dabba x of 4 z raised to 4x. If you are writing this in your books, if you are following this, or if you are just looking at this, might as well decide in your mind ki kya kya bahar aayega. I'll wait for 5 seconds. And if you have decided and then I do this, and if it comes out right, you are good. So dabba by dabba x of 4 z raised to 4x, क्या क्या कांस्टेंट है? 4 कांस्टेंट, z कांस्टेंट, डिफरेंशिएबल क्या? x, ब्रैकेट में कौन बचेगा? x. तो 4 और z रेज टू 4 को मैं बाहर ले लूंगा, माइनस की साइन आगे, 4 z रेज टू 4 एंड dabba by dabba x of कौन बचा अंदर? x. Are you getting the hang of this? Let me explain this once more. When I am differentiating partially with respect to x, except x, everything else, y, z, kuch bhi ho, they will all be considered constant. So dabba by dabba x of 2 x square y, 2 is constant, y is constant, so 2 and y come outside and we will differentiate what? X square. Now here dabba by dabba x of 3 y cube z, 3 constant, y constant, z constant, तीनों constant. So dabba by dabba x of constant is 0. Same rules of differentiation. Minus आ गया, dabba by dabba x of 4 z raised to 4x, 4 is constant, z raised to 4 is constant, they come out, and under dabba by dabba x of x. I am sure we can proceed without any further delay. By dabba x of x square, everybody knows 2x, 0 तो जा चुका है, minus 4 z raised to 4. Dabba by dabba x of x, by d by dx of x 1. No change in no rules. तो अंदर क्या बचा ladies and gentlemen? 2 2s are 4 xy minus 4 z raised to 4. wow, जबरदस्त. पर खत्म नहीं हुआ है, चालू है, क्योंकि ex का इक्वेशन मिला है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. पॉइंट कौन सा है? 1 1 1. सो एट पॉइंट 1 1 1, भाई x की वैल्यू 1 लगानी, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1. तो आओ जी, माइनस, चलो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है? 1, y की वैल्यू कितना है? 1, माइनस 4, z की वैल्यू कितना है? 1, तो 1 रेज्ड 4. आई थिंक दिस इज एज इजी एज दे कम. 4 1 4 1 4 माइनस
4 1 जा 4, माय गॉड। तो आंसर इज अ बिग फैट 0। बराबर है ये। मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 लगाई, y की वैल्यू 1 लगाई, z की वैल्यू 1 लगाना। हर इक्वेशन में ऐसे ही करना है। तो इस तरह आ गया ex का वैल्यू विच इज 0। इसी तरीके से वी हैव टू फाइंड y एंड z। इफ यू आर सिटिंग विथ योर नोटबुक्स एंड पेन्स और पेंसिल्स, might as well start doing it. Let us, I will be there with you. ये ex हो गया. Now let's find ey. Let me rub a couple of things here and there. और बाकी सब कुछ उसी तरह चलेगा। अब मुझे लगता है सब कुछ उड़ा देना चाहिए। आपने ex वाला तो देख लिया, अब ey वाला करेंगे। और अगर आप मेरे से पहले करेंगे तो अच्छी बात है, वेरी नाइस ऑफ दैट। तो लेट अस डू ey। डाबा v बाई डाबा y, डाबा v बाई डाबा y, v की वैल्यू लगा दी। ब्रैकेट ओपन करना आपका धर्म है और जन्म से अधिकार भी। 2x स्क्वायर y प्लस डाबा बाई डाबा y ऑफ 3y क्यूब z माइनस, चलो जल्दी से पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। अगर हमारे से पहले करें, बस अच्छा करें, सही करें, लोचा ना करें। चलो भाई, फर्स्ट टर्म डाबा बाई डाबा y ऑफ 2x स्क्वायर y। अब इसमें किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं? y। So y will be considered, everything else will be constant. So 2 तो constant, x square constant and differentiable क्या? y। तो 2 और x square को निकालेंगे बाहर and डाबा बाई डाबा y ऑफ y। सेकंड वाला कौन बताएगा? मैं ही बताता हूं। डाबा बाई डाबा y ऑफ 3y क्यूब z, 3 constant, y differentiable, z constant. So 3 and z they come out, right? They come out. और अंदर डिफरेंशिएबल में y क्यूब, alright? नेक्स्ट स्टेप पे डिफरेंशिएट करेंगे, नो डाउट्स। एंड फाइनली डाबा बाई डाबा y 4 z रेज टू 4x। चलो बताओ बच्चों, 4 कांस्टेंट, z कांस्टेंट, x कांस्टेंट। ओ माय गॉड, डाबा बाई डाबा y ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा कांस्टेंट। डाबा बाई डाबा ऑफ कांस्टेंट इज 0। जय हो, जय हो गियो ठाकुर, तो गियो। तो अब बचा है डिफरेंशिएशन, जो आपके लिए कौन से हाथ का खेल है मालूम नहीं मुझे। डाबा बाई डाबा y ऑफ y 1, जो रहा है डिफरेंशिएशन में वो कहीं नहीं है। डाबा बाई डाबा y ऑफ y क्यूब, डाबा बाई डाबा y ऑफ y क्यूब 3 आगे आ जाएगा, y रेज टू 3 माइनस 1। बात है भाई, ये 2x स्क्वायर 1 जा 2x स्क्वायर, 3 3 जार 9, y स्क्वायर z। कॉपी करने लोचा मत मारना, पर ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि पॉइंट की वैल्यू रखनी है ना, एट पॉइंट। अच्छा, इसको 2 नंबर का नाम देते, ठीक है, एट पॉइंट 1 1 1। चलो आओ रखें, ey इज माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू भी 1। दिस इज 2, दिस इज 9, 2 plus 9 is 11, so ey is minus 11। लास्ट में ex का वैल्यू मिला था 0, आई होप यू रिमेंबर दैट। यहाँ ey का वैल्यू मिला है -11। एंड इफ यू थिंक यू आर गुड इनफ, और ये बात एकदम समझ में आ गई है, तीर की तरह दिमाग में घुस गई है, तो ez इज माइनस डाबा v बाई डाबा z करके बताओ। वीडियो पॉज कर दो, करके बताओ, फिर चालू करो। मैं तो चालू ही रखूंगा, मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो एज इज नॉर्मल मेरा वही काम है मेरा रोज का। ना मुझको कोई रोके, ना किसी ने रोका। आप भी वही करो, 5-6 सम रोज का, बराबर। इजी इज माइनस डाबा v बाई डाबा c आ गया, डाबा v बाई डाबा c।
भाई खोल दो ना जरा इसको, डाबा बाई डाबा जेड 2x² y। भाई शांति से करने का मजा ही कुछ और है, न्यूमेरिकल्स में जरा भी उतावल आपको पल्ले पार ले जाएगी, वहां से रिटर्न ही नहीं है कोई। चलो भाई, आप तो आप हो। चलो डाबा अभी किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन है भाई, z। सो डाबा बाई डाबा z ऑफ 2x² y। अब इस पूरे में z को डिफरेंशिएबल है, z के अलावा एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट। सो डाबा बाई डाबा z ऑफ 2x² y, 2 कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y कांस्टेंट। ओ माय गॉड, तो डाबा बाई डाबा z ऑफ फुल कांस्टेंट इज हाउ मच, 0। तो पहला ही टर्म 0 हो गया, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट। सो डाबा बाई डाबा z ऑफ फुल कांस्टेंट इज 0। सेकंड वाले का डाबा बाई डाबा z ऑफ 3y³ z, 3 कांस्टेंट सर, y कांस्टेंट सर, डिफरेंशिएबल ओनली z। सो 3y³ बाहर आ गया, डाबा बाई डाबा z ऑफ z ओनली। एंड इसमें डाबा बाई डाबा z ऑफ 4z रेज टू 4x, 4 कांस्टेंट, z कांस्टेंट नहीं है, z तो डिफरेंशिएबल, धीरे रिलैक्स, तो z तो यही रहेगा, x कांस्टेंट। सो 4 और x आ जाएंगे बाहर, और z के साथ हम जो करना है वो करेंगे अंदर, बराबर। z रेज टू 4 आ गया, 4 और x बाहर है। अब क्या है, अब बारात आई है तो नाचना तो पड़ेगा। डाबा बाई डाबा z ऑफ z 1, और डिफरेंशिएशन के अगर खा हो आप, फन्ने खा, तो करो इसको, डाबा बाई डाबा z ऑफ z रेज टू 4, 4 आगे जंपिंग, z रेज टू 4 माइनस 1, खत्म खेल। भाई ये लास्ट आइटम आ रही है, 3y³ 1 जा 3y³, 4 4 जार 16x और z³। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। पर एज इज यूजुअल 1 1 1 की वैल्यूज डालनी है, तो एट पॉइंट 1 1 1 इजी इज माइनस y की जगह क्या पड़ेगा, 1 पड़ेगा। मजा तब आता है जब ये 1 1 1 ना हो कि कुछ और हो, तब तुम्हारी असली कैरेक्टरिस्टिक देखी जाएगी, कितना ध्यान है। So your focus will be found out at that point of time. This is 3 minus 16. That's how much? Minus 13. And minus of minus 13 is 13. So this is how the cookie is crumbling. Ez की वैल्यू आ गई। लास्ट टाइम याद है ex की वैल्यू मिली थी 0, ey की वैल्यू मिली थी -11। So ex मिल गया, ey मिल गया, ez मिल गया, and finally I think we will write the equation for electric field. So the equation for our electric field according to this, the electric field is given as E bar is exi cap plus ey j cap plus ez k cap। ex कितना 0 i cap, ey कितना -11 j cap, and ez कितना 13 k cap। So finally your equation is -11 j cap plus 13 k cap। You want to write units, you can write units, यहाँ पे दी नहीं है। अगर ऐसा यूनिट में दिया होता तो इट वुड हैव बीन न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। सो this was partial differentiation for you, and this is how the entire thing will work. They might give you an equation for v, based in all three terms, or maybe it might contain only x, जैसे हमने लास्ट वाला किया, तो कोई भी तरीके का हो सकता है। and in doing that you have to remember the basic rules that ex is minus dabba v by dabba x, ey is minus dabba v by dabba y, and ez is minus dabba v by dabba z. Finally, electric field E bar is exi cap plus ey j cap plus ez k cap. So
जेई नीट का ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह वर्कआउट होता है. अब आगे चलते हैं. वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, just have a look at this. I'll rub this down. And this topic which I am taking, एक बहुत ही साधारण आइडिया को उठा के इससे बहुत कुछ करवाया जा रहा है. अब ये क्या है, किस तरह, पहले मैं आपको सम बता देता हूं और फिर उसका डिस्कशन एक अलग लेवल पे जाके करेंगे. सो व्हाट इज द सम? द सम इज a positive charge which is plus 5 coulomb is taken from a point A having potential 500 volt to another point B having potential 100 volt. What is the change in potential energy of the charge? अब you will tell me, sir, easy है ये, क्या आप डरा रहे हो? easy है, हमको पता है ना सर. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेने आप बोलोगे सर आइडिया क्या है, आपने लास्ट लेक्चर में बताया था वर्क डन इज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सर आप ही भूल जाते हो, विच इज क्यू इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एकदम फर्स्ट क्लास. तो अब क्यों इसको ऐसे ले रहे हो भाई? कभी कभी मात्र पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं पूछते, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज पूछ लेते हैं. क्या है, प्लस है, माइनस है. एंड हमको यहाँ पे प्लस और माइनस का भी तो ध्यान रखना है. दैट इज व्हाट मेक्स दिस सम अ लिटिल ऑफ बीट. तो ऐसे ऑफ बीट सम को कैसे टैकल करेंगे? ओके, अब जो भी कुछ मैं लिखने जा रहा हूं इसको भूल जाओ, इस पे आएंगे वापस थोड़ी देर बाद, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे. अब मैं जो करा रहा हूं उसको देखिए. मैं इसको हमेशा टिप की तरह लिखता हूं. अच्छा, क्या है ये टिप? ध्यान से देखेंगे. Tend to do this for my students whenever I'm showing them this idea. Okay, एकदम साधारण स्टफ है. रोज देखा है आपने ये चीज होते हुए. ये घर है हमारा, होम है, ग्राउंड लेवल पे, we'll call it point Y, and this is the overhead टंकी of your building which is we are calling point X. Now first things first, पानी naturally कहां से कहां जाएगा? Will it go from X to Y or will it go from Y to X? You will say, sir क्या ये बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछते हो? Water flows naturally from point X मतलब टैंक to point Y मतलब home. And now what is naturally? Naturally बड़ा ही नेचुरली हो गया. ये पेन मैं यहां पकड़ा हूं और यहां से छोड़ दूं, कहां गया नेचुरली? सर नेचुरली तो नीचे जाएगा ना. क्यों नेचुरली नीचे जाता, ऊपर क्यों नहीं जाता नेचुरली? यू से सर आप है ना 12th स्टैंडर्ड से 6-7 स्टैंडर्ड पे आ गए हो. ओके, आ गया. तो आप बता दो, आपने 7th स्टैंडर्ड पार किया ना, तो आप बताओ क्यों नेचुरली आता है? ग्रेविटी, बरोबर. ग्रेविटेशनल फील्ड
तो फील्ड कहां है? इस तरफ। ओके, लाल कलर में फील्ड दिखाएंगे। यो है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये पानी will flow naturally under the effect of electric field from X to Y. So water flows naturally from point X to point Y in the direction of electric field नहीं, sorry mistake हो गया, gravitational field. अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, जब x से y पे आएगा पानी की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? सपोज कोई बॉडी ऊपर से छूट के नीचे आ रही है, तो डू यू अग्री जैसे जैसे नीचे उतरेगी इट्स स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो फ्रॉम x टू y, इधर से इधर the kinetic energy, the speed of water, hence its kinetic energy goes on increasing. Wow, very good, lovely. तीसरी बात, तुमने तो ये भी देखा ना बचपन में कि the total sum of kinetic and potential energy is constant. तो अगर काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल घटेगी. सो इसको यहां लिखें या यहां लिखें? यहां लिख लेते हैं. इस आइडिया को खत्म यहां करेंगे हम. लेट मी पुट अ लक्ष्मण रेखा हियर, इस सम को कोई टच नहीं करेगा, सम ऐसे रहेगा. एंड फ्रॉम एक्स टू वाई, द potential energy, the gravitational potential energy of water goes on decreasing. Not only because kinetic energy goes on increasing, so potential energy goes on decreasing. ऐसा नहीं लेना है. तो भी तुम देखोगे y is at lower height, x is higher, तो x पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, y पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, x इज हाई पोटेंशियल, हाई लेवल, y इज लो लेवल. सो अगर तुम ग्रेविटेशनल फील्ड को नजरअंदाज करते हो फॉर अ मिनट, तो कैन यू सी दैट वाटर विल नेचुरली फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू low level. So another point, also water flows naturally from high level to high potential, ऐसा बोल सकते हैं, to low potential. तो हमने यहां पे देखा तीन चीजें. पहला तो नेचुरली वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. फर्स्ट थिंग, अपने को कुछ नहीं करना पड़ता. कौन करता है? फील्ड. सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो तो वो नेचुरली फ्लो होगा. हमको वर्क करने का दरकार नहीं है, वर्क करने की हमें जरूरत नहीं है. सेकंड, हाई लेवल से लो लेवल आएगा तो काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. एंड थर्डली, वर्क किसने किया? इन गोइंग फ्रॉम x to y, work is done by the gravitational field and external agency, मतलब हम, does not do any work. हमको वर्क कब करना पड़ेगा? जब हमको y से x ले जाना हो. So if I take water from low level to high level,
अब इसको पलटा देना है. कैन यू सी? इन गोइंग फ्रॉम x to y, kinetic energy increases, potential energy decreases, work done by the field in the direction of the field. Now if I go from y to x, सब पलट दो, सब कुछ पलट जाएगा. y to x जाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. सही पकड़े. पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. एंड वर्क कौन करेगा? वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द फील्ड. बात समझ में आई? सो मैं यहां पे रेड में लिख रहा हूं, x टू y, मतलब हाई टू लो. Ke increases, P decreases, and work done by field. इतना दूर से नजर आ रहा है आपको? ये साइड एंड तक आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. एंड अगर y से x, लेडीज एंड जेंटलमैन, y से x, आई एम श्योर आप मेरे को बता रहे हो, y टू x मतलब लो टू हाई. तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं. अगेंस्ट द फील्ड. इतना समझ में आ गया? एक और बार समझा दूं मैं. कुछ भी हो जाए ना, आप हमेशा ऐसा कोई भी टाइप का सम हो इस तरह का, हमेशा ये टैंक और होम का आइडिया याद रखना. टैंक हाई पोटेंशियल पे है, होम लो पोटेंशियल पे है. अगर तुम नीचे घर का नल चालू करोगे, डू यू अग्री वाटर विल फ्लो नेचुरली फ्रॉम टंकी टू होम? और जैसे तुम्हारे घर में तुमने टैप ऑन किया, वाटर धन 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 हाई स्पीड में फ्लो हो रहा है. सो इफ गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, वाटर विल फ्लो नेचुरली. पहला शॉट. दूसरा, वाटर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एंड तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. अब कहीं से भी कुछ भी ले जाना हो, y से x जाना हो, लो से हाई, तुमको उसको सिर्फ पलट देना. y से x जाना हो, लो से हाई जाना हो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड हम जा रहे हैं फील्ड के अगेंस्ट. हमेशा याद रखना, फील्ड इज ऑलवेज from high potential to low potential. All right, field always points from high potential to low potential. इस पूरे आइडिया को तुम ऐसा है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके पीछे जाके एक बार फिर से देख लो. मैं यही डायग्राम बना रहा हूं फिर से इसके लिए. सो कम बैक, कम विथ मी, यू कैन सी ऑल दिस व्हेन वी गो बैक. यू कैन गो बैक एंड सी ऑल दिस. बट यही फंडा, यू विल एंजॉय दिस नाउ. यू नो, ये तो तुमने देखा होगा, बचपन में साइंस पढ़ रहे थे, ये सब कर रहे थे, तो टैंक है, ये है, वो है, सब देखा है तुमने. अब अप्लाई करने का टाइम आया. यू नेवर न्यू कि इस चीज को यहां अप्लाई कर सकते हैं. ओके, यू आर रेडी? ऑलराइट, सॉल्यूशन कमिंग अप. ये वो है. अच्छा भाई, पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए. डू यू एग्री पॉइंट ए इज हाई पोटेंशियल and point B is, let us say, low potential. जैसा वाटर के साथ किया, हम फिलहाल सम नहीं सॉल्व कर रहे, हम सिर्फ आइडिया पकड़ रहे हैं. सपोज ये हाई पोटेंशियल है, बी लो पोटेंशियल है, वैल्यूज बाद में डालेंगे. पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा बी यहां नहीं रखना है, उनको यहां रखना है, नीचे रखना है. ओके, आपको जैसा अच्छा लगे. बेस्ड ऑन योर इनफाइनाइट एक्सपीरियंस, क्या आप मेरे को बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा? जो लॉजिक हमने टैंक, पानी और होम के लिए लगाया था और ग्रेविटेशन के लिए लगाया था, वही यहां लगा रहा है. ये टैंक है हाई पोटेंशियल पे, ये होम है लो पोटेंशियल पे. ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरफ था? फ्रॉम टैंक टू होम.
तो उसी तरह यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज कीजिए मेरे पास यहां एक पॉजिटिव चार्ज है और वो यहां से यहां आ रहा है, क्या कंक्लूड करेंगे आप इसके लिए फॉर पॉजिटिव चार्ज? व्हाट आर योर कंक्लूजन्स? सो माय केस 1, पॉजिटिव चार्ज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। सपोज ए से बी जा रहा है, कैन यू सी दिस पॉजिटिव चार्ज is going in the direction of the field, in the direction of field jayega. Do you agree it will go naturally? So my first conclusion, positive charge goes naturally in the direction of the field, that is from A to B. So A से B एकदम naturally जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा जो करना है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जा रहा है, आप देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डू यू अग्री? स्पीड बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन होगा। सो फ्रॉम ए टू बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। ब्यूटी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल का क्या? द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल, क्या बोलो, क्या लिखूं? डिक्रीजेस। एंड चलते चलते वर्क कौन कर रहा है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा नहीं। अच्छा, तो ये तो हो गया केस 1। अच्छा, केस 2, positive charge goes from B to A. Positive charge goes from B to A, या positive charge goes from A to B। भाई देखो, B से A जाना है, can you see it will have to go against the electric field? क्या अपने आप जाएगा? नहीं जाएगा, we will have to do work। So external agency has to do work in going from low pot to high pot। और एक्सटर्नल एजेंसी करेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? घट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी increases। So if we go from low pot to high pot, the potential energy will increase whereas the kinetic energy will decrease। ये तो हो गई पॉजिटिव चार्ज की बात। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो बताओ जी। सपोज ये ब्लू में लगाता हूं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को अगर यहां लेके जा रही हूं, बताओ, मैं वो उड़ाने वाला हूं, जरा उसको एक बार देख लो। देख लिया? अच्छा, सो हमारा शॉट केस 1, नेगेटिव चार्ज, ये सब उड़ेगा। अपने लॉजिक का हाथ मत छोड़ना, आपको लॉजिक एंड तक चला के लेके जाएगा, बस आप लॉजिक का हाथ मत छोड़ना। केस 1 नेगेटिव चार्ज, केस 3 वाली, नेगेटिव चार्ज गोज फ्रॉम ए टू बी। So if negative charge goes from high pot to low pot, can you see ये negative charge है और ये electric field है। Negative charge always tends to move opposite to the direction of electric field। So if negative charge goes from high pot to low pot, पॉजिटिव चार्ज से उल्टा उसका बिहेवियर होने वाला है। पॉजिटिव चार्ज नेचुरली जा रहा था, नेगेटिव चार्ज नेचुरली जाएगा नहीं। सो वर्क विल हैव टू बी डन बाय
एक्सटर्नल एजेंसी, पहला शॉट। अच्छा भाई, जब भी एक्सटर्नल एजेंसी काम करे तो काइनेटिक एनर्जी की तो धज्जियां उड़ जाए। सो काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज गोज ऑन, या डिक्रीजेस ही लिखते, गोज ऑन की क्यों बजा रहे? अच्छा भाई, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, बराबर है। सो सर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे फिर भी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों हो रही? भाई पॉजिटिव चार्ज जब हाई पॉइंट से लो पॉइंट जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, पर नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी माइनस हो गया ना, तो हाई पॉइंट से लो पॉइंट नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। माइनस ऑफ डिक्रीज इज व्हाट? इंक्रीज। फेयर इनफ। अच्छा, केस 4, negative charge goes from B to A, लो पॉइंट से हाई पॉइंट। बोलो क्या होगा? किसको काम करना पड़ेगा? डू यू अग्री? नेचुरली नेगेटिव चार्ज विल फ्लो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जब यहां जा रहे हैं, aren't we going opposite to the electric field? So if negative charge goes from low pot potential to high pot, ये नेचुरल हो गया, इट गोज नेचुरली ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी काम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। दूसरा, जब फील्ड के संगे ही चल रहा है, फील्ड की वजह से ही चल रहा है, अच्छा लिख देते हैं नहीं, वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। जब काम फील्ड करे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े और पोटेंशियल एनर्जी घटे। ये इतना सारे पढ़े घटे घटे बढ़े, ये इतना सारा लिख रहे हैं, पब्लिक मेरे को पूछते कंफ्यूज नहीं हो जाते क्या? नहीं, मैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होता और इसीलिए आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मेरे माइंड में टैंक, होम और पानी है। टैंक हाई पोटेंशियल, होम लो पोटेंशियल एंड पानी इज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज विल गो नेचुरली फ्रॉम हाई पॉट टू लो पॉट, नेचुरली, और नेचुरली जाए, पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। सिंपल एज दैट। बस मैं इन तीन चीज को याद रखता हूं, हाई पॉट टैंक, लो पॉट घर, पॉजिटिव चार्ज पानी, दैट्स इट। अब अगर कुछ भी पलट दिया तुमने, सपोज ये हाई पॉट है, ये लो पॉट है, पानी की जगह नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज है, सब पलट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर पानी को यहां से यहां लेके जा रहे हैं, पानी टैंक घर पानी, पानी अगर नीचे से ऊपर जाएगा, अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा, अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़े। मैटर इज क्लोज। माइंड में यही फंडा रख के मैं ये सम भी सॉल्व करने वाला हूं, एकदम चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड एकदम क्लियर है। मैं फिर से डायग्राम बना दूं और इस सम को लेकर आगे बढ़ जाएंगे और आप ही बताना आप मेरे क्या है क्या नहीं। वैसे आप बताओगे मेरे को सुनाई तो देगा नहीं, पर आप बताओगे मुझे किस तरह, उसी तरह जिस तरह हम किया करते हैं। पॉइंट ए, हाई पोटेंशियल भाई कितना, 500 वोल्ट। बी, लो पोटेंशियल कितना, 100 वोल्ट। और कौन कहा जा रहा है भाई? पॉजिटिव चार्ज है,
ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, कहां पे है, ए पे है, और वहां से यहां आना है। भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि हाई पॉट से लो पॉट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये रहा। सो फर्स्ट शॉट, पॉजिटिव चार्ज गोइंग फ्रॉम हाई पॉट टू लो पॉट, वर्क कौन करने वाला है, फील्ड करेगा सर, हमें कचू ना करना। वेरी गुड। हाई पॉट टू लो पॉट पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेरी गुड, और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। वाह वाह वाह, टच कर गए आप तो, मतलब आंसर को, किसी और को नहीं। सो इफ पॉजिटिव चार्ज goes from high pot to low pot, its Ke increases while its P decreases। मतलब जेंटलमैन एंड लेडीज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में जाएगी। फेयर इनफ। सो अब हमारा वर्क डन इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सर सही है एकदम टकाटक, विच इज Q इंटू डेल्टा V। भाई चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है, चार्ज कितना था 5 कूलम। भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल रादर, विच इज Q फाइनल पोटेंशियल VB माइनस VA। 100 माइनस 500 विच इज 5 इंटू माइनस 400, कितना हुआ 2000। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस 2000 जूल। और अगर कोई तुमसे पूछे भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पूछा नहीं है पर पूछे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, क्योंकि काइनेटिक बढ़ रही है ना साहब, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज प्लस 2000। एंड ये तो पूछा नहीं है, पर अगर कोई पूछ ले कि भाई वर्क डन कितना है, तो तुम बोलोगे वर्क कौन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड किया, हमने कुछ भी नहीं किया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 जूल, एंड वर्क डन बाय जयदीप जोशी, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी 0। हम कुछ और नहीं किए मालिक, सिवाय लिखने के एजेंसी इज 0 जूल। यही बात, यही सम, मैं नेगेटिव चार्ज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कि अगर ये -5 कूलम्ब होता और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते, फॉर एग्जांपल ए से ही बी तक लेके जाते, क्या चेंजेस होते के में, पी में, वर्क, आप फाइंड करो और कमेंट में लिखना। तो होमवर्क क्या है आज का, होमवर्क में नेगेटिव चार्ज, कहां लिखूं मैं, यही लिख देता हूं। सो नेगेटिव चार्ज, इसको होमवर्क बना देते, आपने तो ये देखा ही, मैं सब चेंज कर रहा हूं, मजा आएगा। तो होमवर्क, negative charge of -2 coulomb is taken from a point A having potential 1000 volt to point B having a potential of let us say 500 volt. What is the change in potential energy of the charge? What is the change in potential energy, kinetic energy and work done? कौन करता है क्या नहीं, इसी तरह आंसर आप इसमें लिख के बताएंगे, किसमें, -2 जो है थोड़ा नीचे, अच्छा, नेगेटिव चार्ज ऑफ -2 कूलम इज अग्रीएबल, बराबर है। तो इसी लॉजिक से आप मेरे को चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, इसी तरह लिख के कमेंट में बताइएगा। टिल दैट टाइम विल सी यू, थैंक्स अ लॉट, कीप सॉल्विंग, हैप्पी सॉल्विंग, लॉकडाउन का पालन करें, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।